تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں. آج کا سبق جو ہے ہمارا، اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو ختم کریں گے. اس میں آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں ابھی تک جو ہم سکسیسفل پرسن کی عادات پڑھے تھے وہ ہم 12 عادات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، جس میں سے ہم 9 پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو آج باقی کی عادات بھی ہم سیکھیں گے. اس کے علاوہ گرامر کے اندر ہم لوگ مونس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے، اور اس کی کیا مطلب کس طرح سے اس کو کرنا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس سبق میں ہم نے جو نئے الفاظ سیکھنے ہیں وہ 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3298 ٹائمز آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. یہ ہماری بیٹری جو ہے مزید چارج ہو جائے گی انشاءاللہ، 15,000 سے زیادہ ہو جائے گی. تو اس کو بھی ہم اینڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ یہاں سے ہم لوگوں نے اس کا تھوڑا سا ایک دفعہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9,000 دفعہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ہر لائن میں دیکھیں کوئی نہ کوئی اس کا لفظ آ رہا ہوتا ہے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. اہدینا، اس کی تلاوت سے ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 6. اہدینا الصراط المستقیم. اہدینا جو ہے وہ 2 ٹکڑوں سے مل کے بنے. ٹھیک ہے، اہدی اور نا سے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ہدایت دے. اس کا اشارہ اس طرح سے ہوگا. انشاءاللہ یہ آگے جا کے آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ بھی لیں گے. یہ ویسے فیل ہے، فیل کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہترین سمجھ آئے گی. اور یہ نا بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، اٹیچ ضمائر والا، جو سسٹر وصال نے بھی آپ لوگوں کو بھی ریوائز کروایا ہے. تو یہ وہ والا نا ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اہدی جو ہے قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 ٹائمز آئے. اہدی ہدایت دے، اور نا کا کیا ہے؟ ہمیں. یہ آپ لوگوں نے جو اس کے ٹکڑے ہم بنواتے ہیں نا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لینا کیونکہ یہ ہمیں بہت کام آئیں گے. اچھا، ہدایت کا ورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. قرآن ہم لوگ اردو کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اردو سیکھنے کا مطلب اردو ہمارے پاس آلریڈی ہمیں آتی ہے تو اس کا بھی ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے انشاءاللہ. تو اگر ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. جی سسٹر جویریہ آپ بتائیں. سیدھا راستہ، آ، صحیح سسٹر راستہ جو. ٹھیک ہے، ہدایت ایکچولی جی سسٹر آپ بتائیں. راستہ دکھانا. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کا انسٹرکشنز کوئی دینا. اور یہاں پہ کس ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی انسٹرکشن. اور صرف یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا میں نے فلانی جگہ جانا ہے، فیصل ماسک جانا ہے یا کہیں، مجھے آپ بتا دیں. تو کوئی بندہ ہوگا وہ آپ کو راستہ بتا دے گا، اس طرح اس طرح اس طرح آپ جائیں گے، وہاں سے یہ کریں گے، تو آپ کو راستہ بتا دیتا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، یعنی کہ منزل پہ جا کے پہنچاتا ہے. تو ہدایت میں یہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی، صرف انسٹرکشن نہیں بلکہ منزل تک پہنچانا. ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم ہدایت دیں گے. یہ دعا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کریں کہ ہمیں ہدایت دے، یعنی کہ صرف انسٹرکشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں منزل تک بھی پہنچا دے ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے. اب کس چیز کی ہدایت ہے؟ آگے اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہے. الصراط، راستے کی. ٹھیک ہے، راستے کی یعنی کہ کون سا راستہ ہے ابھی دیکھ لیتا ہے. اور یہاں پہ ہدایت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور حدیث سے ملے گی. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا قرآن میں جو ہے ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں ہدایت دی ہے. قرآن کو ہم ہادی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ہدی للناس، یہ قرآن کی جو چیزیں ہیں. ہدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین یعنی کیا اس کا مطلب ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں الصراط کیا ہوتا ہے، یعنی راستہ. اس کے اندر جو ال آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیا شو کر رہا ہے ہمیں؟ یہ کیا ہے؟ ال کس چیز کی نشانی ہے؟ جی فاطمہ نظر آپ. اسم کی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اور کیا چیز آ رہی ہے؟ الصراط یہ واحد بھی ہے. ٹھیک ہے، راستے کی. اب کون سے راستے کی ہم لوگ ہدایت مانگ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے خاص راستہ.
हाँ, किसी खास रास्ते की, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आते हैं। अब मुस्तकीम, अल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की। ठीक है, सिर्फ रास्ता नहीं, कौन सा, सीधा रास्ता। इसकी आगे और भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी देखते हैं। अब ये कुरान में कितनी दफा आया है, 45 टाइम्स आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्तकीम आ गया। आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा, खत्ते मुस्तकीम यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना। फिर मैथ्स में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। फिर ये कितनी दफा आया कुरान में, 37 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे याद रख लें, कोई ना कोई आप इसके साथ अपने जहन में कोई ना कोई आप, वो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, बिजलियां चमकानी है, तो उसके साथ आप कुछ रिलेट करके उसको थोड़ा सा अपने जहन में कर लिया करें, माइंड मैपिंग कर लिया करें। अच्छा, ये इस तरह है, इसका ये मतलब होगा। इस तरह करने से फिर वो चीज भूलती नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे जैसे सीधी लाइन है या इस्तकामत का क्या मतलब होता है, मुड़ना या हटना नहीं है, हम लोगों ने सीधा चलना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, देखिए यहाँ पे अल आ गया, क्या मतलब हो गया इसका, खास रास्ता। ठीक है, किस चीज की हम हिदायत मांग रहे हैं, किसी खास रास्ते की हिदायत मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से। और यानी इस तरह से उसकी आप कह दें कि जो रास्ता है उसकी सिफत बताई हुई है, किस तरह से, किस रास्ता तो दिखाए अल्लाह ताला, लेकिन वो सीधा हो। ठीक हो गया। फिर एक और चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे हम दौर इत्तेसाब वगैरह कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, हम तो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हम तो हिदायत याफ्ता लोग हैं, तो हमें तो कुछ नहीं करना चाहिए, अब बस हम लोग तो क्राइटेरिया पूरा हो गया। लेकिन बात यह है कि आप एग्जाम्पल लें, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, उधर चले जाते हैं, एडमिशन हो गया। ठीक है, अब वहां चले गए, आपको समझे, आपको वो चीज मिल गई है, लेकिन फिर उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी में अगर जाके पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, रोज नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे नहीं अच्छा कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में तो आ गया, फायदा क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो हिदायत है वो हम लोगों को रिन्यू करते रहना चाहिए, उसकी दुआ मांगते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों को भी इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे और चीज भी है, जैसे आप लोग तसव्वुर करें, हम पहले अल्लाह ताला से दुआ करें, जैसे हम लोग हर आयत के बाद कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है, अपना एहतसाब करें, क्या मैं सीधे रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, फिर प्लान बनाए कि मैं किस तरह आ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद तबलीग करें और दुआ करें, तो ये थोड़ी देर आपने सोचना होता है इस बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे यानी कि जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता चला दिखा हमें। ठीक है, यानी कि सिर्फ सीधा रास्ता दिखा ही नहीं, बल्कि उस पर चलने की तौफीक भी अता फरमाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो हर टाइम पे आप लोगों को हिदायत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो भी इसके शर हो सकते हैं उससे हम लोगों को बचा के रखे, और हम बेहतरीन रास्ते पे जाए। ठीक है, जैसे अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, किसी वक्त शैतान का हमला ना हो जाए, तब भी हम लोगों को दुआ करनी होती है। ठीक है, इसको रिन्यू करते रहना चाहिए। और हिदायत कहाँ से मिलती है, कुरान से मिलती है, और किससे मिलती है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इसकी तालीम जो है वो सीखनी है और उसको समझना इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब सूरह फातिहा जो है इसकी तो हम लोगों ने जब हमने स्टार्ट की थी तब भी देखा था कितनी ज्यादा अहमियत है, हम हर वक्त जो है नमाज के अंदर इसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और क्या बार बार हम लोग अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। और इसको इस तरह से समझ लें, ये आपके लिए एक इमरजेंसी जैसे लग जाती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉप लिस्ट प्रायोरिटी यही है आपकी, कि आपको अल्लाह ताला जो है हिदायत पे रखें। अब यहाँ पे एक और चीज बताइए कि अगर आप लोग इसको अपने जहन में लाएं, ठीक है, हिदायत वाली चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप सोचिए इसका ऑपोजिट क्या है। इसका ऑपोजिट है गुमराही, तो हम लोगों ने उससे बचना है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हिदायत पे नहीं होंगे ना, तो हम लोग बिल्कुल डी ट्रैक हो जाएंगे, रास्ता ही बदल जाएगा, गुमराह लोगों के उस पर चले जाएंगे। तो इस चीज से हमने क्या आदत सीखी है कि अल्लाह ताला से हर काम में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हिदायत जो है अल्लाह ताला से वो मांगनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम आदत नंबर अगली भी देख लेते हैं और दूसरी। अच्छा, यहाँ पे एक दफा आप लोग दोबारा पढ़ें, और ये आपका टाइम है, आप लोग इस पे सोचें। ठीक है, और अल्लिम सिखाइए, इहदीना सिरातल मुस्तकीम,
हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। ठीक है, अब इसकी आगे फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है इसके अंदर, वो देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आ रही थी, सिरात कौन सा रास्ता है, अल्लाजीना, अल्लाजीना क्या है, लोग, उन लोगों का, अनअमता। ठीक है, अनअमता का क्या मतलब है, अनअमता की वैसे इस तरह होगा, या आप थोड़ा आगे जाकर आपको पता भी चल जाएगा, इंशाल्लाह फिर डिस्कस भी करेंगे। इनाम किया तूने, ठीक है, अलैहिम, इन पर। अब अलैहिम के कितने टुकड़े हैं वो देख लेते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता सिरात से शुरू करते हैं दोबारा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमें पता चल गया हम लोग किसी सीधे रास्ते की जो है वो दुआ करेंगे। ठीक हो गया, अल्लाजीना, अब कौन से लोग हैं, अब अल्लाजीना कितनी दफा आया कुरान में, 1080 टाइम्स आया। ठीक है, उन लोगों का, कौन से लोग, किन लोगों की बात हो रही है, अनअमता, जिन पे अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया है। ठीक है, तो वो लोग कौन हैं ये देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो कह रही थी, अभी आपने अटैच प्रोनाउंस पढ़े थे ना, अभी वहां ये बात भी पढ़ी थी कि ही और हिम जो है वो सेम होता है उसका मतलब। ठीक है, तो वो किसी वजह से उसके ऊपर जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी आ गया, अला और हिम ये दोनों उन पर मिला के बन रहे, इसकी आप लोगों को एग्जाम्पल भी मिल गई है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने अब देखते हैं कि वो लोग कौन थे। ठीक है, तो इनाम याफ्ता लोग कौन से थे, एक अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये हमें कहाँ से बात पता चलती है, सूरह निसा के अंदर है, आयत नंबर 68 में। आप लोग खुद से भी देखिएगा इंटरेस्ट के तौर पर, और उसकी तफसीर भी थोड़ी सुनिएगा, ज्यादा आपको मजा भी आएगा इसका ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे गौर फिक्र थोड़ी सी करें आप लोग, क्या आप लोग हिदायत पे हैं, अपना थोड़ा सा एहतसाब करें। ठीक हो गया, यहाँ पे ये देखिए यहाँ भी गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सिरात अल्लाज़ीना था ना, जो सिरात मुस्तकीम जो था, जो सीधा रास्ता था, वो इन लोगों का था। ठीक है, इन 4 लोगों का। अंबिया कौन थे, अंबिया वो थे जो अल्लाह ताला ने भेजे, ठीक है, अपने पैगाम लेकर। फिर सिद्दीकीन कौन थे, जो अंबिया की तस्दीक करते थे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद शुहदा कौन थे, शुहदा कौन होते हैं, जो अल्लाह की राह में अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, और सालेहीन कौन है, जो नेक लोग होते हैं, नेक अमल करते हैं, ज़कात देते हैं और इस तरह के सारे। ठीक है, तो वो सालेहीन होगी, ये 4 कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद इनका रास्ता क्या था, अब यहाँ से देख लेते क्या रास्ता था इनका। यहाँ पे हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या चीज होती थी, आपने 4 इंपॉर्टेंट काम किए थे, 4, ठीक है, 3 नहीं, 4 इंपॉर्टेंट काम थे, क्या थे वो, अमल। ठीक है, अब अमल के अंदर क्या आ जाता है, एक तो हमारा जाहिरी अमल होता है। ठीक है, एक हमारा अंदरूनी अमल होता है, यानी उसमें क्या आ जाता है, हमारी नीयत आ जाती है, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, हमारा तकवा, या जो भी अल्लाह ताला ने हम लोगों को, क्या हम लोग किस नीयत से कर रहे हैं ये काम, या अल्लाह का डर, क्या डर के कर रहे हैं अल्लाह से, और तवक्कल और भरोसा, ये सारी चीजें जो है हमारी अंदरूनी सारी वो चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे जो फिजिकल या बाहरी अमाल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नमाज, ज़कात, रोजा, ये सारी चीजें आ गई। ठीक हो गया, ये पहला काम था। अब दूसरा काम क्या था, दावत देना, यानी कि आप लोगों ने तबलीग भी करनी है। ठीक है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने भी दावत दी, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। ठीक है, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी मुशक्कतें की हमारे लिए। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। फिर अगली तो भी देख लेते हैं, तज़किया। तज़किया का मतलब क्या होता है, यानी तज़किया का मतलब होता है पाक करना। ठीक है, जैसे ज़कात जो वर्ड है वो भी इसी से निकला हुआ है, ज़कात यही होता है ना, हमारे माल को पाक होता है हमारा जब हम ज़कात देते हैं। ठीक है, तज़किया करना यानी इसके अंदर आ जाते हैं लोगों के अकीदे और अमाल, और इखलाकी और माशरी को, अच्छा यानी कि जो भी वहां पे चीजें थी, गलत मलत चीजें थी और बुरे अखलाक, और उस चीज से पाक किया। ठीक हो गया, तो कुरान के अंदर इसकी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद 4th बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी नेकी का हुक्म देना। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना।
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سوسائٹی میں یہ ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. تو یہ 4 امپورٹنٹ کام تھے، ٹھیک ہے، جو انبیاء کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بتائی ہوئی، جیسے انعامتا ہے، انعام. اب ہمیں بھی وہ انعام چاہیے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ ہمیں بھی یہ 4 کام جو بتایا نا، یہ ہمیں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یہاں سے ہماری عادت بھی اس کو ڈیرائیو کر لیتے ہیں. ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی صحبت ہم نے اچھی رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو ہم لوگوں نے چیک کرتے رہنا، اور پلان بنانا ہے. جو ہم لوگ ایک سلائڈ دکھاتے ہیں نا ہر چیز کے بعد، تو وہ اسی لیے تدبر کریں، اپنے آپ کو چیک کریں. ٹھیک ہے، انسان اپنا سب سے بڑا جج خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ کا ٹائم ہے 2 منٹ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. علم، سکھائیے. اچھا، اس کے بعد آگے کیا چیز ہے؟ غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اردو میں ہم بڑا یوز کرتے ہیں غیر 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 اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، اس میں غیر ہے، کیا مطلب؟ نہ. بالکل نہیں، یہاں سے پڑھ کے کہہ رہے ہیں نا، اردو میں تو نہیں. آپ کتنا غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں کیسے یوز کرتے ہیں؟ جی کون بتائے؟ کوئی اور سسٹر بتائیں ذرا. جو اپنا نہ ہو، غیر ہو، پرایا پرایا، جس کو ہم ہاں غیر. جانتے نہ ہو. ہاں، غیر کا مطلب یہی ہو گیا نا، اس کے علاوہ اس طرح کا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غیر کا مطلب ہے نہ. المغضوبی. اب پوری دعا دیکھیے، کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری دعا خود ہی سکھائی ہے کہ ہم یہ روز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پوری کنٹینیو کریں کہ ہم لوگوں کو کس کا راستہ دکھا؟ جن پر تو نے نام کیے، ان کا نہیں. مغضوبی، المغضوبی. اب یہاں سے کیا 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں. اللہ کے ساتھ تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ال کا مطلب ہے سمے. ٹھیک ہے، یہ پتہ چل گیا نا. غضب کیا گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے راستے پہ نا اللہ تعالیٰ لے کے جائے جن پہ غضب کیا گیا. علیہم، 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے، اللہ اور ہم. ابھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ لے کے جانا. جیسے غیر کا مطلب یہ کتنی دفعہ آئے قرآن میں؟ 147 ٹائمز آئے. ٹھیک ہے، اس کو اردو میں ہم نہیں بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کر کے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، مغضوب. مغضوب جو ہے وہ اسی طرح کا ورڈ ہے نا، مظلوم، اسی طرح کا وزن لگ رہا ہے، اسی طرح کی ساؤنڈ آ رہی ہے، مظلوم. ٹھیک ہے، جیسے مظلوم تو زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ میں تو بڑا مظلوم تھا جی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی ساؤنڈ کے جتنے آئیں گے نا، وہ پھر جیسے جس پر غضب کیا گیا، یہ ہو گیا. تو مغضوب کا مطلب ہے غضب کرنا. ٹھیک، اللہ اور ہم، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ 2 ٹکڑے تھے. ٹھیک ہے، اور پوری دعا دیکھی کتنی خوبصورت ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا، جو مغضوب ہوتا ہے، چلیں اب اس کا ڈفرینس ابھی دیکھتے ہیں. ولا اور نہ، الضالین. ٹھیک ہے، یہ پوری دعا ہے، کتنی جامعہ قسم کی دعا ہے نا. دولین کون ہے؟ جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ جو ہدایت پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دولین سے ہمیں کیا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو اس کے سامنے ساتھ اللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ سم ہے. اور یان آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ جمع. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ جمع ہے، مذکر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے مذکر کی جمع ہی پڑھی ہے نا، واو نون یا یا نون ایڈ کرتے ہیں. پتہ چل گیا مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے اور اسم بھی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اس سے پتہ چل گئی ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب مغضوب کون؟ مغضوب کے بارے میں اس کا ڈفرینس کیا ہے مغضوب اور دولین؟ پہلے اس سے دیکھ لیتے ہیں. ولا اور نا. ٹھیک ہے، یہ بھی 2 ورڈز ہیں. وا یہ حرف ہے، لا اس کا مطلب نہیں. اور یہ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں؟ 1687 ٹائم. آپ لوگ پلیز مائک جو ہے اپنی میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ہے دول. اب یہ دول کیا ہے؟ دولین ہے وہاں پر. تو ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اس کا واحد یہ ہوگا دول. ٹھیک ہے، گمراہ ہونے والا. دلالت، یہ تو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ہم، دلالت. ٹھیک ہے نا، تو گمراہ. ہاں
गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जहाँ प्लस लगा हुआ है वो उसकी जमा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो वाहिद है, दोनों तरह से आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है। अब मखदूब कौन थे? वैसे तो इसका इशारा जो है कुरान में या तफसीर से जो पता चलता है यहूद के ऊपर किया गया है, ठीक है, यानी कि जो जानते थे, जो अल्लाह ताला की जो अहकाम थे उन्हें जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, ठीक है। तो लेकिन वाकई से तो नहीं कि ये बात है, कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए है, तो क्या ये हमारी बात तो नहीं हो रही? हम तो नहीं उसमें शामिल? हम लोगों को इसको थोड़ा सा सोचना है, अपना हिसाब करना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को पता भी है और फिर भी वो हम गलत मलत काम कर रहे हैं? हमें एक काम भी अल्लाह ताला का पता है कि ऐसा नहीं करना, क्या हम उसमें तो नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सा अपने आप को इस तरह आयात को पढ़ के थोड़ा सा सोचना होता है और अपने आप को देखना होता है, ठीक है। अब मखदूम कौन थे? ठीक है, दौल तो हमें पता चल गया, वो तो गुमराह लोग थे जो मखदूम थे, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी ये भी पढ़ लेते हैं क्या इसमें कह रहे हैं। यहाँ पे वही बता रहा है ना, अल्लाह ताला ऐसे लोग का गुस्सा हुए जो जानते थे, अमल वगैरह नहीं करते थे ना, तो हम लोगों ने क्या दुआ करनी है? इसी में से अपनी दुआ निकाला करें हर चीज से कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक दे, समझ भी दे और अमल की तौफीक दे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दौलीन जो है, अब वो कौन से लोग थे जो जानते ही नहीं थे, ठीक है, और ना उन्होंने कोशिश की कि हम जान ले, बस बगैर जाने जो है वो अमल किए जाते थे। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, हमारी समझे कोई दादा या कोई फैमिली में कोई ऐसे करता है तो वही रस्म और रवाज चली जा रही है चली जा रही है, हमने कभी कोशिश नहीं की अच्छा ऐसे है हम भी ऐसे ही करेंगे, वो कोशिश ही नहीं की ना जानने की, पता ही नहीं है कि ये ठीक बात है या नहीं है, बस उसी पे अमल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी नहीं, इसके इस तरह भी कर सकते हैं जैसे कुरान में सारा कुछ लिखा हुआ, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं हमें तो अरबी नहीं आती, हमें तो नहीं पता क्या अब उसमें लिखा? ये एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुन लिया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमल भी करें, ताकि हम इस कैटेगरी में भी ना आए इंशाल्लाह, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वही बातें लिखी हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या आदत डिराइव कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला हमें बुरे रोल मॉडल से बचाएं, ठीक है। बुरे रोल मॉडल्स कौन है? जो इस्लाम से दूर है, जो फॉलो नहीं करते या जो इस तरह मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, अल्लाह ताला हमें उनसे भी बचा के रखे, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप लोगों का टाइम है, वला दौलीन, और ना जो गुमराह हुए, अल्लिम आमीन। आमीन, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक दफा फिर आप लोग दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है, ठीक है। इस बात को करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है। क्या करना है इसके लिए? हम जितना सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है कि ये कर लिया, आप लोगों ने सोचना है, नियत को खालिस करना है और दुआ करनी है अपने लिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो तोहफा दिया है, एक स्टेप एक कदम आगे बढ़ना, तो अल्लाह ताला जो एक कदम बढ़ता है अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आता है। तो हम लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत भी दे इंशाल्लाह, ठीक है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी इजाफा करे इंशाल्लाह। अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी, ये दुआत को जुआत पढ़ते हैं, दुआत, इसमें कंफ्यूजन होती है, मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है, या तो दुआत पढ़े। जी सिस्टर, बेसिकली जो अरबों का ये हदीस है ना कि कुरान को अरबों के लबो लहजे पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसी को कॉपी करें। अब मुझे पता है हम लोगों को पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसको स्विच करना नामुमकिन नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। और आप सीखें, तजवीद सीखें, जरूर सीखें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। अल्लाह ताला ने पॉइंट डाला तो इसको आपने अब वेस्ट नहीं करना, आप सीखें, ठीक है। सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन है? वरना हम आगे चलते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है।
اچھا کیا آپ سب کو بھی میری آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی؟ کسی کا میسج آیا ہوا کہ یور وائس از ناٹ کلیئر؟ اگر کوئی بتا دے تو اچھا ہو جائے گا، میں کچھ کرتی ہوں اس بارے میں. آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، کسی کسی کو آواز کٹ جاتی ہے، باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جن کی کٹ رہی ہے وہ یا تو دوبارہ ری جوائن کر لیجیے. آواز آ رہی ہے. چلیں باقی کا گرامر پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر نوٹ کیا ہے؟ ہر انداز کے لیے گرامر سے پہلے یہ تھوڑی سی چیزیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. انسان کو جو ہے اپنے ہر حصہ دماغ کا استعمال کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا نا، دماغ کی بجلیاں کڑکائیں، یعنی کہ آپ لوگ ریلیشنز بنائیں، کو ریلیٹ کریں چیزوں کو. جیسے آپ کوئی لفظ سنتے ہیں، اس کی کیسی ساؤنڈ ہے، اس کا کیسا دیکھنے میں کیسا ہوگا، تصور تھوڑا سا کریں. جتنے آپ ریفرنس اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ سارے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ کوئی نیا ورڈ سیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو اردو زبان میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کر کے جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ کا ڈھیر ساری دماغ کی جو ہیں وہ کڑکے گا، بجلیاں چمکیں گی اور آپ کو پھر وہ چیز بھولے گی نہیں انشاءاللہ. ٹیچر بنیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم روز کہتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ کا QC1 کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کو ہم TTW جو ٹیچرز ٹریننگ ورک شاپ ہوتی ہے اس کا بھی انشاءاللہ بتائیں گے. چلیں جی، یہاں سے ہمارا 4B لیسن سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں. اچھا یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذکر سے مونس بنانے اور اس کی جمع بنانی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے مونس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں جو ہے مونس کا صیغہ جو ہے وہ بہت کم آئے، جبکہ مذکر کا صیغہ جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ آیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کی بات ہی کم ہوئی ہے یا اس طرح. ہر چیز جیسے اردو میں ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا، جیسے سورج ہوتا ہے، ٹھیک ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کرسی ہوتی ہے مونس ہے. یہ ساری چیزیں بھی کور ہو جاتی ہیں. تو ہم کس کی بات کریں؟ صیغے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے گرامر کیسی سیکھنی تھی؟ TPI کے ذریعے سیکھنی تھی. کیسے کرنا تھا؟ ہم نے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے، اس طرح تھا نا. یہ ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کیا اشارے عجیب سے ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ پہلے اس سبق میں ہی طے کر لیا تھا کہ جو ہے یہ فطری طریقہ ہے اشارات کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی ایڈوانسڈ جو جتنی بھی لینگویج کی ریسرچز ہیں اس کے اوپر بیسڈ یہ ہے. جو ہمارے ڈاکٹر عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے اس کو بہت ریسرچ کے بعد یہ کورس ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے نہیں اشارے کرنے ہیں، میں تو مشکل طریقے سے سیکھوں گا. پہلے بھی تو لوگ سیکھتے ہیں نا ابھی، تو میں نے بھی مشکل طریقے سے سیکھنا ہے. لیکن آج کل کا دور جو ہے نا وہ آسانی کا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے آسانی سے ہمیں جلدی جلدی چیزیں آ جائیں. ہم نے نہیں پرانے زمانے کے اس سے نہیں کرنا، اس میں بڑی دیر لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو شارٹ کٹ مل رہا ہے تو اس کو آپ نے اویل کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں نہیں اشارے کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھی کون سے ضمائر ہوتے ہیں؟ ڈیٹیچڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، اس طرح سے آتے ہیں. ہوا، وہ، تم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے ٹیبل پڑھ لیا تھا. جی سسٹر فاطمہ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیجیے. نہیں سسٹر، میں نے یہ ٹیبل کرانا تھا. اچھا چلے ابھی آپ کو موقع دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک سسٹر کہہ رہی تھی ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی کلاس شروع ہونے سے پہلے نا، اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، جو ایک ورڈ ہوتا ہے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہے. الفاظ کی یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ اسم ہوگا. اسم میں کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ کسی کا نام، اس میں جگہ کا نام ہو، چاہے کسی آبجیکٹ کا نام ہو، کسی بھی چیز کا نام، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یا صفت. صفت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بڑا خوبصورت ہے یا مسلمان ہے یا مومن ہے،
ये सारी भी सिफात में कंसिडर होता है, ठीक है। ये इसम होती है, ये सारी चीजें जो होंगी इसम इसको कंसिडर करेंगे। अब इसकी क्या निशानियां होती हैं, मोस्टली हमें ये निशानियां मिल जाती हैं, लेकिन आपने एक दिमाग की खिड़की खुली रखनी है कुछ एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, अलिफ लाम आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, तनवीन आ गई, 2 पेश 2 जेर और 2 जबर, ये सारी इसम की निशानियां, एंडिंग जो है उसकी, ठीक है, या शुरू में अलिफ लाम आ गया, ठीक है। अब एंड में जो है वाव नून या नून अलिफ ता वगैरह वगैरह, ठीक है। आज इसका अलिफ ता का भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब फेल क्या होता है, जिससे काम का होने या करने का पता चले, जैसे वर्ब होता है, ठीक हो गया। वर्ब के अंदर हम लोगों को कोई, और इसके अंदर एक और चीज भी होती है, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे हम आपको। और फिर हर्फ क्या होता है, हर्फ जो होता है वो इसम और फेल को मिलाता है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी आप लोगों ने पढ़ भी ली हुई है, बी पढ़ा था आपने, याद है ना, ली भी पढ़ा था, मिन भी पढ़ा होगा, या अभी नहीं पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर इस तरह फी है, इन्ना वगैरह वगैरह, ये सारे भी हरूफ है हमारे। अब यहाँ पे हमने देखा था इसम जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ठीक है। ये सारे हमारे इस्मा हैं। अभी इसके एंड पे ना हमने कुछ डाला नहीं हुआ, आप ताकि बोलने में आसानी हो, आप लोग सोच लें कि मुस्लिम ही होगा, मुमिनुन ही होगा, ठीक है। इस तरह भी आप फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं और इसको इस तरह से देखते हैं। अच्छा, जैसे हमने ये पढ़ा था कि जमा बनाने का क्या कायदा था। अब ये जमा सालिम क्या होते हैं, कौन बताएगा, सालिम किसको कहते हैं? वो हम कहते हैं ना बाजार जाके, अच्छा मुझे सालिम मुर्गा ही दे दो, मैंने तो वही खाना है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, उसको कहेंगे सालिम, ठीक है। अब इसके जमा बनाने का क्या, इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके पता चल जाएगा। वैसे अभी थोड़ा सा देख लेंगे, पूरा मुस्लिम वर्ड जो है उसके आगे वाव नून लगा दो या नून लगा दो, सिंपल। फिर उसकी 2 तरह की जमा बन जाएंगी। कौन सी सिस्टर बताएंगी? सिस्टर फातिमा, आपने हैंड रेज किया था ना उस वक्त, आप ही चलिए बताएं। मुस्लिम, इसकी जमा क्या क्या बन सकती है? मुस्लिमून, मुस्लिमीन, ठीक है। मोमिन, वो नून लगा के मुस्लिमून और या नून लगा के मुस्लिमीन। शाबाश, ठीक है। वाव नून कब लगेगा ये भी बता दें चलिए। जब वाव मुस्लिमुन होगा, ऊपर पेश माशाल्लाह, होंगे तो वाव नून लगेगा, और नीचे जेर और जबर होगा तो उसके लिए मुस्लिमीन लगेगा। और अगर माशाल्लाह, जेर वेरी मतलब गुड, जबर है या जेर है, दोनों के लिए नीचे जेर ही आएगा, मुस्लिमीन ही आएगा। माशाल्लाह, मुस्लिमीन, ठीक है। हाँ, आगे मोमिन, मोमिनूना, मोमिनीना, फिर इसी तरह आगे भी पढ़ दीजिए सिस्टर। जी, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, स्वाले, स्वालेहून, स्वालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, मुनाफिक, मुनाफिकून, मुनाफिकीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सही सिस्टर। अच्छा, आज अभी हमने लास्ट लेसन में तो पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि ये जो है अटैच्ड प्रोनाउंस हैं, ठीक है। मुत्तसिला भी जैसे इस तरह, इससे आप अपने दिमाग में बिजली कड़काएं और ये इशारा याद रखें, जुड़ के आते हैं, ठीक है। इससे आपको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस भी जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, कोई पोजेशन या कोई अपनी मलकियत शो करने के लिए हम कहते हैं उसकी किताब, उसका पलंग, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज, ठीक है। इसका मोस्टली तर्जुमा इसी तरह होता है, का, की, के, इस तरह करके, ठीक है। ये एक सिस्टर कोई हैंड रेज कीजिए और ये एक दफा रिवाइज कर दें। ईमान फातिमा, सिस्टर ईमान फातिमा, आपको आवाज शायद नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। अच्छा, आपकी पारी, आप पढ़ दीजिए। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, सबका, ना हमारा। तुम आप सबका और ना हमारा, वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक है। और सिस्टर शाहिदा, चले आप भी पढ़ जाए, आपका दिल कर रहा है, आप भी आ जाए। हु इसका, हूँ उसका, इन उसका, सब का। मेरी बात सुने, एक चीज, उस कहना है, उन और उस, क्योंकि इस कहेंगे ना तो इसका मतलब थोड़ा चेंज होगा। हम किसी गैर हाजिर बंदे की, कोई थर्ड पर्सन की बात करें, उस, उन, हूँ उसका, हूँ इनका, का, उनका, 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 का आपका, सी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है। ये है, ये मेरा, ये, ठीक है, सी नहीं है, ठीक हो गया,
चले एक दफा मैं दोहरा देती हूँ, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हुम आप सबका, ना हम सबका या हमारा। ये टुकड़े जो हैं इतने इम्पोर्टेंट, इसके आप किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं इम्पोर्टेंस का, कि कुरान के हर लाइन में, तकरीबन हर लाइन में ये टुकड़ों से कोई ना कोई आया हुआ। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए आप। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान होंगे, आप फिक्र ना करें। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट लेसन में भी किया था, और ये कितनी दफा कुरान में आया इसको भी देख लेते हैं। कुरान में 950 टाइम्स आया ये। उसका रब जैसे कहना हो जी, कौन सी सिस्टर करेंगी? सिस्टर नौरीन राना आप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अच्छा, आगे आते हैं, आज का सबक स्टार्ट करते हैं ना। हमने एक इंटरेस्टिंग सी चीज करनी है, मुज़क्कर से मुन्नस बनानी है और उसकी जमा भी इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, यहाँ फिर वो बिजली कर लें आप अपने जहन में कि अच्छा ये पिंक कलर का था, फ्लावर था, तो ये मुन्नस की बात हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग इशारा करते थे, अभी तक हमने लेफ्ट हैंड यूज नहीं किया था, आज हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। ठीक है, हम कहते थे हुआ वो मर्द। ठीक है, अब हमने कहना होगा ना वो औरत, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड से एक तरफ हमने इशारा किया, किया वो औरत। किस तरह? हुआ वो मर्द, किया वो औरत। ठीक हो गया, इसको आगे भी देख लेते हैं। और ये कौन से प्रोनाउन है, कौन बताएगा मुझे? अटैच्ड है कि डिटैच्ड है? जुड़ के आने वाले हैं कि अलग अलग आने वाले? जी, कोई हैंड रेज करें, बताइए। मुतसिला। सिस्टर नहीं है, मुतसिला नहीं है। मुतसिला क्या मैंने बताया था? ऐसे आपने फासले से याद रखना है, मुनफसिला। ठीक है, ये इस तरह फासले से आएंगे। ठीक है, हुआ और हिया। ठीक है, ये हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। आप जब मुतसिला की बात करें ना, वो पोजेशन शो करता है, वो किसी चीज का किसी के साथ कोई ताल्लुक बताने के लिए यूज होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, रब्बुहु उसका रब। ठीक है, देखिए तर्जुमे में डिफरेंस था ना, यहाँ पे क्या हुआ वो मर्द, हम उस बंदे की तरफ इशारा करें, वो मर्द, या वो औरत। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, जैसे यहाँ पे बड़े मजे की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे मुस्लिम था, ठीक है, इसको हमने कैसे मुन्नस बनाना है, इसका क्या फॉर्मूला या क्या टेक्निक है? मुस्लिमाता या मुस्लिमातुन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं पहले। मोमिन, ये कौन पढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोगों को कहती हूँ। ठीक है, मोमिन, ये मोमिन, मोमिनत। फिर इसी तरह साले, सालेहा, उसको मैं अभी साइलेंट करूँ, काफिर, काफिरा। ठीक है, किसी भी चीज के आगे गोल ता लगा दिया हमने, मुशरिक, मुशरिका। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं, किसी ने ये नोट किया है कि मीम के ऊपर, यहाँ तो, यहाँ लाम के ऊपर तो जेर थी, यहाँ पे मीम के ऊपर जबर आ गई, ये क्या, कैसा क्या सीन हुआ यहाँ पे? तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये आप फॉर्मूला समझ लें, आखिरी हर्फ जो है उसके ऊपर जबर लगाएंगे और एंड में गोल ता लगा देंगे ऐसे। इसको ता मरबूता भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, तो क्या पता चला, हमने किसी चीज की अगर हमने मुन्नस बनानी होगी तो एंड पे हम क्या करेंगे, पहले जबर लगाएंगे और एंड में गोल ता लगा देंगे। ठीक है, बोलने में आसानी हो जाएगी, इस वजह से ये चेंजेस करते हैं, जैसे मोमिन, मोमिनातन। ठीक है, तो इसको आपने याद रखिए ना, एक आध दफा आप इसको पढ़ेंगे, आपकी आंखों के आगे से गुजर जाएगा, लिख लेंगे, आपको बेहतरीन याद हो जाएगा। इसका बेहतरीन हल क्या है, आप लोग अपनी वर्कबुक साथ साथ सॉल्व करें, इसमें बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अब हम अरबी बोलचाल पे आ जाते हैं। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा। हमने क्या करना है, हमने मुज़क्कर से क्या किया, मुन्नस बना दिया। ठीक है, अब एक और चीज इसमें देखें, अब जब हुआ आ रहा है ना, जब किसी मर्द की बात करें तो हमने हुआ लिखा था, अब हुआ मुस्लिमात तो नहीं लिख देना, आपने कहना है, अगर वो कह रहे हैं ना हुआ मुस्लिम, आप कहेंगे हिया मुस्लिमातुन। ठीक है, इसी तरह हुआ मोमिन, हिया मोमिनातुन। फिर हुआ सालिह, हिया सालिह। आप लोग इशारे भी करें, हुआ साबिर, हिया साबिरा। ये तो नाम भी होते हैं, ये तो आपको इंशाल्लाह याद भी रह जाएंगे। हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। ये कोई सिस्टर हैंड रेज कर लीजिए। और
जी सिस्टर ईमान फातिमा आप पढ़ लें। जी सिस्टर ईमान फातिमा अनम्यूट कीजिए और आप ये मैं आपके मुज़क्कर बताती हूँ, आपने मुन्नस पढ़ना है जी। अच्छा सिस्टर अगर आप नहीं करना चाह रही तो सिस्टर जवेरिया आप कर लें। चलें हुआ मुस्लिम कीजिए सिस्टर। सिस्टर ठीक है ताहिरा आप पढ़ लीजिए सिस्टर ताहिरा। जी सिस्टर ताहिरा अनम्यूट कीजिए। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे म्यूट कर लीजिए। सिस्टर ताहिरा आप करें। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन, हिया मुमिना, हुआ सालिह, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर। हिया शाकिरा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर जो ये जज़म आ गई है ना, ये स्लाइड में मिस्टेक है। आप लोगों ने कभी भी इसम को जज़म नहीं देना, ठीक है। ये आगे जाके रूल्स पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह, अभी परेशान नहीं हो, ठीक है। सिस्टर ये गोलता जो है ये साइलेंट है? आप साइलेंट, अभी मैं एक्चुअली बोलने की आसानी के लिए साइलेंट पढ़ रही हूँ, वैसे ये साइलेंट होती नहीं है। मुस्लिमातुन या तन या तिन कुछ इस तरह करके आएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अभी हमारा फोकस किस चीज पे है कि हम लोगों ने उसके अंदर बस गोल तार डाल दिया है, उसके इराब पे आप फिक्र ना करिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, जब हम किसी मर्द की बात करें अन्हु आ रहा है, और जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा, ठीक है, ये एग्जांपल्स तो हमें बड़े बेहतरीन आती होंगी ये इन सहाबा की, ठीक है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह को तो सबको पता है। तो ये हम हमेशा इस तरह सुनते हैं कि औरत जब की बात हो रही है उसके अंदर हा आ जाता है, और हु जब मर्द की बात हो रही है तो हु आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो ज़माइर है, ये कौन सी ज़माइर है, कौन बताएगा? जुड़ के आने वाली है ना, मुत्तसिला है, मुत्तसिला, ठीक है। ये दोनों अब औरत के लिए कौन सी यूज होगी? हाँ, ठीक है। और आदमी के लिए कौन सी यूज होंगी? हु यूज होगी, ठीक है। और चीज आप अपने जहन में रख लीजिए, जितने ज़माइर के टेबल हमने पढ़े हैं, चाहे हमने अटैच प्रोनाउंस पढ़े हैं, यानी कि मुत्तसिला वाले पढ़े हैं या मुनफसिला वाले पढ़े हैं, ये सारे क्या हैं? अस्मा हैं, ठीक है, इसम है। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना कि बताएं इसमें से इसम है या हर्फ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी ज़माइर आ रहे हैं ये सारे अस्मा हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रब्बुहा, सॉरी रब्बुहा इससे होगा, इससे होगा रब्बुहा, ठीक है, उस औरत का। लेफ्ट पे होगा? हाँ बिल्कुल। चले आप ही पढ़े सिस्टर, कौन है आप पढ़िए। रब्बुहा उस औरत का रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ठीक हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, औरत की बात करनी होगी तो हमने एंड पे हा लगा देना। इसम वही है, देखिए रब्बू का भी हमने पढ़ लिया था, रब का पढ़ा था ना लास्ट लेसन में पढ़ा था, उसके साथ अटैच किए थे। तो अगर हमने बात करनी होगी किसी औरत की चीज हो तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? हा लगा देंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वही बात आ गई, मुजक्कर से मोनस अगर आपको कोई कह देता है, या क्विज में सॉरी आपके होमवर्क में कोई क्वेश्चन आ जाता है रब्बू से आपने मोनस बनाना है, तो आपने सिंपल क्या करना है? हु की जगह हा लगा देना है, ठीक है। रब्बुहु रब्बुहा, ठीक हो गया। फिर दीनुहु दीनुहा, फिर उसके बाद देख लेते हैं किताबुहु किताबुहा, रसूलु रसूलुहा, और फिर उसके बाद जो एंड में जो एग्जांपल आ रही है इस्मुहु इस्मुहा, इनके सारे आप लोगों ने मीनिंग्स तो पढ़ी ना, बड़े इजी से है। ये इसम का मतलब भी पता है, रसूल का, किताब का, दीन का और रब का, ठीक है। तो सिर्फ प्रैक्टिस किया से हाँ लगाना है। किसी ने प्रैक्टिस करना है तो हैंड रेज कर लीजिए। सिस्टर अनीस फातिमा आप कर लें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह खैर। आगे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अरबी बोलचाल कर लेते हैं। सिस्टर मंसूरा आपसे मैं सवाल पूछूंगी, आपने जवाब देना है। मन रब्बुका,
जी सिस्टर मंसूरा, आप अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज हुआ है। मन रबुहा, चलें कोई और सिस्टर मैं करा दूं। जी रब्बु हल्ला, ठीक है। सिस्टर कौन सी शाहिदा है? फातिमा, अच्छा चलें आप करा दें। ठीक है। माँ दीनुहा, दीनु हल इस्लाम, ठीक है। माँ किताबुहा, किताबु हल कुरान, मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ इस्मुहा, इस्मुहा फातिमा, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उसका नाम क्या है? ठीक है, इस्मुहा ठीक हो गया, ज़ैनब या ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मन का वर्ड भी यूज हो रहा है और माँ का भी, मतलब ये वही आ रहा है। ठीक है, कुछ सवालों में मन आ रहा है, कुछ सवालों में माँ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मन से मतलब है कि उसका रब कौन, मन का मतलब कौन, जी, और माँ का क्या मतलब है फिर? माँ का मतलब है कौन? क्या, क्या क्या एक्चुअली ये दोनों ही सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। मन जो यूज हो रहा है ना, वो किसी आकिल चीज या रब के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मन रसूलुहा या मन रबू, और जो माँ होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अकेले या गैर आकिल चीजें जो होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। इसको अभी आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जमा बनानी, हमने कहा था हम जमा भी बनाएंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया मुस्लिम से हमने मुस्लिमा बना लिया, अब उसकी जमा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अलिफ और ता ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मुस्लिमा मुस्लिमात, ठीक हो गया। मुमिना मुमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, अच्छा यहाँ पे ये कोई ट्राई करेगा? रब्बुहुम, इसका क्या मतलब है? उन सब का रब, उन सब का ठीक है, रब, ठीक है। उन और सब का मैं दीन। जिससे मैं पूछूंगी ना सिर्फ वो बताएगा, ठीक है, ताकि सारों को मौका मिले ना, बाकी सारे बेचारे बैठे हुए हैं। सिस्टर ताहिरा आप बताएं, दीनुकुम का क्या मतलब है? हम सबका दीन। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, और यहाँ इसका भी देखिए, हमारी किताब कैसे इशारा है? हमारी किताब, इसका क्या होगा? सिस्टर शाहिदा आप बताएं, हमारी किताब, नो, किताबू क्या आएगा? किताबू हुम आएगा कि ना आएगा? किताबुना, शाबाश शाबाश जी। सिस्टर सादिया आप बताएं, उन सबका दीन, उन सबका दीन, इस तरह से इशारा होगा। क्या होगा इसका? दीनुहा, शाबाश माशाल्लाह, दीनुहा होगा। मुझे जरा दीनुहुम, दीनुहुम, माशाल्लाह ठीक होगी। चले अब नुक्ता तालीम पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर से मुझे लग रहा है एक स्लाइड मिसिंग है, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे चलिए, अगले लेसन में मेरा ख्याल है होगी, देखेंगे। अच्छा, नुक्ता तालीम का क्या मतलब होता है? हमारी छुट्टी का टाइम आ गया, बस छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग खुश हो जाए। और क्या करना है, दिमाग क्या काम करता है हम लोगों के, हमने देखा था ना, वही बात होगी जो मैं सुबह से आपको बता रही हूँ कि इस पिछले सबक में हमने क्या सीखा था। जब दिमाग में हम लोगों ने बिजलियां कड़कानी है, चमकानी है, जितनी चीजों से जितने रेफरेंस पॉइंट्स आप लगा सकते हैं अपने किसी भी जो आपको समझ ना आ रहा हो, रेफरेंसेस उसके बनाने हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दिमाग को बेहतर इस्तेमाल होता है। जब हमारा दिमाग ज्यादा यूज में आएगा तो इसका मतलब है वो ज्यादा देर चलता रहेगा। ठीक है, और इसका फायदा इधर से भी देख लेते हैं, क्या फायदा होता है। मानी जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि पिंक कलर का है, गुलाब बना हुआ है और हा लिखा हुआ है या हिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे सारे रेफरेंस पॉइंट्स थे जाके हम लोगों ने उसके साथ अटैच कर दिया कि अच्छा ये चीजें हैं, तब हम इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। ठीक है, मानी जल्दी याद हो जाएगा, देर तक याद रहेगा। कोई चीज आप रट्टा मार के याद करेंगे वो आपको अगले दिन भूल जाएगा या 2 दिन बाद भूल जाएगा। तो बचपन में क्या होता था, वो कोई एग्जाम की कोई चीज कोई ऐसी याद करके ना, तो उसका क्या करते थे, हम शॉर्ट लेटर बना लेते होते थे। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या था, डब्ल्यू, सेकंड वर्ड क्या था, सेकंड वर्ड का एज, इस तरह करके ना। फिर क्या होता था, एग्जाम में जाके ना खाली वो एक्रोनिम जो बनाया होता था वो याद होता था, ये नहीं याद होता था किस चीज का बनाया था। ठीक है, रट्टे का ये नुकसान होता है।
تو اگر سمجھ کے بندہ کرتا ہے نا تو پھر اس کو زیادہ دیر تک انشاءاللہ یاد ہے. اور یہ بات ہے اور جلدی یاد آ جائے گا جب ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کریں گے یا تھوڑا سا. اب جیسے آپ لوگوں کا لیسن ہوتا ہے گوگل فارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس طرح کے سوالات ہیں, لکھا ہوتا ہے ہم کا کیا جواب ہے, آپ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہے, ذہن میں نہیں آیا, آپ اشارہ کریں ہوا ہم, آپ کو ساتھ ہی آ جائے گا. یہ کسی غائب بندے کی بات ہے, بندوں کی بات ہے, ٹھیک ہے, جمع کی بات ہے. تو اسی طرح اگر آپ سے پوچھ لے تین حکم, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ذہن میں آ رہا, اس کا نیچے آپشن لکھے ہوئے ہیں, کچھ ذہن میں نہ, ساتھ ہی آپ اشارہ کریں اس طرح, دینہو, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, دیننا. تو آپ کو ساتھ ہی پتہ چل گیا نا کہ آنسر نکلا ہے آپ سب کا دین. تو یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کی وہی سلائیڈ آ گئی ہے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے اور دل سے کیجیے, ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, احساس کے ساتھ پڑھنا ہے, تصور کرنا ہے, جو ہماری ایک سلائیڈ آتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا احتساب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے, ٹھیک ہے. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے کتنے ورڈز اور یاد کیے, ہماری کتنی بیٹری چارج ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں. ہماری 15,000 سے زیادہ بیٹری چارج ہوگی ماشاءاللہ, الحمدللہ. کہ یہ آپ سب بھی, اور یاد کیا رکھنا کی بات تھی کہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بیٹری اور چارج ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو یہ پھول آپ لے لیجئے اور اپنے بکے میں لگا لیجئے. اور مجھے کون بتائے گا کہ گلاب کے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وردہ. وردہ. ماشاءاللہ, وردہ, بالکل. چلیے یہ سسٹر آپ لے لیجئے اور اس کو بالوں میں لگا لیجئے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, لیسن کا 7 ہوم ورک جو ہم کرتے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کیا کرنا ہے, 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, اور اس کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی باتیں کرنی, نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی, اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہو گیا. یہ پاکٹ بک آپ لوگوں کی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو میں ہمیشہ سسٹر نورین ہمیشہ بتاتی ہیں, سارے بڑا وہ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی جیسے آپ بچوں کو کچھ یاد کرانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں نا بورڈ پہ کہ یہ بچہ جو ہے آتا جاتا دیکھتا رہے, تو اس کا بھی یہی فائدہ, نماز کے وقت کھولیے, اس کو ریوائز کرتے رکھیے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ورڈز کے جو میننگس ہیں یہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. چلیں, اور ٹیچر بنیے, ٹھیک ہے. ٹیچر کیسے بننا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ بنیں گے. ابھی آپ کسی ون پہ فوکس کیجیے اور بہترین طریقے سے کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کسی کا کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو پوچھ لیجئے, میں ریکارڈنگ ایک منٹ